اور سب سے پہلے بات ایودھیا کی۔ سپریم کورٹ نے ایودھیا اراضی ملکیت تنازع میں فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ مسلم فریق کی طرف سے سینئر وکیل راجیو دھون نے آج بولڈنگ آف ریلیف پر اپنی جرح پوری کی، جس کے بعد چیف جسٹس آف انڈیا رنجن گوگوئی کی سربراہی والی 5 رکنی آئینی بینچ میں سماعت مکمل ہو گئی۔ عدالت نے معاملے میں فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اس سے قبل ہندو فریق کی طرف سے سی ایس ودیاناتھ، رنجیت کمار اور سشیل جین نے دلائل پیش کیے۔ ایودھیا معاملے کی سماعت 40 دن تک جاری رہی۔ عدالت کی تاریخ میں یہ دوسری سب سے طویل سماعت تھی۔ اور اب رخ کریں گے تلنگانہ کی خبروں کا۔ کریم نگر میں جماعت اسلامی نے فوج میں بھرتی کے لیے آئے نوجوانوں کو بھرپور مدد فراہم کرنے کی کوشش کی۔ بلا لحاظ مذہب و ملت ہر نوجوان کو رہائش اور کھانے پینے کی سہولیات مہیا کراتے ہوئے آرام دہ ماحول فراہم کیا گیا۔ مذہبی آہنگی کو برقرار رکھنے کی جماعت اور مقامی مسلمانوں کی کاوشوں کو کافی سراہا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے تمام اضلاع اور پڑوسی ریاستوں سے ہزاروں نوجوان کریم نگر کی آرمی ریکروٹمنٹ ریلی میں شامل ہوئے۔ فوج میں شامل ہونے کے لیے آئے ان نوجوانوں کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے۔ کریم نگر شہر میں آرمی کی بھرتی ریلی کے چلتے کافی گہما گہمی دیکھی گئی۔ ان نوجوانوں کو شہر میں رہائش کے لیے کافی مشکل جھیلنی پڑی۔ حالانکہ کلیکٹریٹ کے سامنے ریونیو گارڈن میں ان نوجوانوں کے لیے قیام کی سہولت دستیاب کرائی گئی تھی، لیکن ایسی سہولیات ہمیشہ سے ہی ناکافی اور نامناسب ہی ثابت ہوتی آئی ہیں۔ ادھر جماعت اسلامی ہند برسوں سے اس مسئلے کا جائزہ لیتی آ رہی تھی۔ فوج میں شامل ہونے کے لیے آئے ان امیدواروں کو جماعت اسلامی ہند نے رہائش اور قیام کی بہتر سہولیات مہیا کروائی۔ کریم نگر شہر کی 2 منزلہ جعفری مسجد میں ان نوجوانوں کو 2 دنوں تک کھانے، رہنے، سونے اور بشری ضرورتوں سے فراغت کی سہولت دی گئی۔ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇలాంటి మసీద్ ఇట్లా ఉంటుందని। ముస్లిం వాళ్ళు ఇక్కడ మంచి ఏర్పాటు చేశారు మాకు, ఫ్యాన్స్ చేయడం, లైట్స్ అండ్ బెడ్షీట్స్ ప్రతి మేము వచ్చి రన్నింగ్ కొట్టి మంచి మా గోల్ మేము సాధించుకొని వెళ్ళాలని తపనతో వచ్చాము। جماعت سے وابستہ لوگوں نے بلا لحاظ مذہب و ملت تمام نوجوانوں کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، اور یہاں سہولت پانے والے سینکڑوں نوجوانوں نے کہا کہ وہ ابھی تک یہی سمجھتے تھے کہ مسجد محض عبادت کی جگہ ہوتی ہے، لیکن انہیں یہ اب جا کر معلوم ہوا کہ رفاہی کام بھی مسجدوں میں انجام دیے جاتے ہیں۔ انسانیت کو ترجیح دینے کی اس پہل پر فوج میں شامل ہونے آئے امیدواروں نے کافی مسرت کا اظہار کیا۔ آرمی کے بچوں کے لیے بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ سب سکون سے یہاں پر کوئی چیز کی کمی نہیں ہے یہاں پر۔ ఎందుకంటే సైనిక దళాల్లో చేరబోతున్న మాకు ఒక ఐకమత్యం అనేది ఏందో మాకు వీళ్ళు చూపించడం జరిగింది। ఇక్కడ సాధారణంగా కేవలం ఒకటే మతానికి చెందిన వారు కాకుండా ప్రతి ఒక్క మతానికి చెందిన మా సోదరులు, అన్నదమ్ములు ప్రతి ఒక్కళ్ళు మేము ఒకటే దగ్గర ఉండి ఒకటే దగ్గర మేము రెస్ట్ తీసుకొని రేపు ఆర్మీ ర్యాలీకి పాల్గొనబోతున్నాం। నిజంగా ఇది మాకు ఎంతో ప్రోత్సాహంగా, ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంది। రేపు మేము సైనిక దళాల్లో చేరిన తర్వాత కూడా మా దేశం కోసం వీళ్ళు మా కోసం ఇంత ఆలోచించారు కాబట్టి వీళ్ళ కోసం మేము అవసరమైతే ప్రాణాలను కూడా మేము अर्पिंचడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం। उधर जमात के जिम्मेदारों ने भी कहा कि मुल्क के फौजी बनने जा रहे नौजवानों की खिदमत करके उन्हें काफी खुशी हुई है। जमात ने फराहम की गई सहूलत पर नौजवानों से राय और मशवरे भी हासिल किए, ताकि मुस्तकबिल में भी उन्हें बेहतर अंदाज में खिदमत पेश की जा सके। और ये मस्जिद जो अल्लाह का घर है वो तमाम इंसानों के लिए है, और अल्लाह ताला सबका रब है, और हम चाहते हैं कि तमाम इंसान अल्लाह के बंदे बनकर रहे और आपस में भेदभाव ना हो। इस्लाम इंसानियत का दर्ज देता है और इंसानियत से हमदर्दी का दर्ज देता है, और फिर इस्लाम में खिदमत खल्क़ की बड़ी अहमियत है, और फिर लोगों की तकलीफ़ को दूर करने का बड़ा सवाब और अजर है। इसलिए हमने बिला लिहाज मज़हब मिल्लत इसका एहतमाम किया है।
फराहम करदा सहूलियात पर इन नौजवानों की जानिब से इजहार इत्मीनान को जमात ने अपनी कामयाबी करार दिया और नौजवानों को मुश्किल से बचाने की जमात इस्लामी की इन काविशों को बेहद सराहा जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए करीमनगर से खास रिपोर्ट। तेलंगाना आरटीसी को हुकूमत में जम करने के असल मुतालबे के साथ जेएसी के ज़ेर-एहतमाम आरटीसी के वर्कर्स की हड़ताल 12वें दिन भी जारी है। इस दौरान अवाम के मसाइल में कमी के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने की हाई कोर्ट की जानिब से मुलाजिमीन और हुकूमत को हिदायत दी गई, इसका कोई असर नहीं हुआ है। हुकूमत और मुलाजिमीन अपने मौक़िफ़ पर अटल हैं। 12वें दिन भी रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर हड़ताली वर्कर्स ने मुजाहरे मुनज़्ज़म किए। मुलाजिमीन की हिमायत में अपोजिशन पार्टियों के साथ साथ दीगर तंजीमें सामने आ रही हैं। TNGOs ने हड़ताल की तायद करने का ऐलान किया है। तलबा तंजीमों ने भी आरटीसी मुलाजिमीन की तायद में रैलियां निकाली। Strike is be like to a Sakala Jana Samme. Before the Telangana bifurcation, when we are started with the Sakala Jana Samme, the RTC's strike also is going to be like a Sakala Jana Samme. So all the unions, all the political parties and all the NGOs and TNGOs, everybody is supported. We are fighting only save the RTC, save the democracy. हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो बंद को सपोर्ट देना बोल के हम आपका टीवी तरफ से उन लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं को डिमांड कर रहे हैं। गवर्नमेंट आरटीसी लोगों का इश्यूज को बहुत सानुकूलत से देख के वो लोगों का डिमांड्स को कंपलसरी सॉल्व करना क्या है। और सेकंड बात है इमीडिएट तरफ से गवर्नमेंट जेएसी आरटीसी को बुला के चर्चा करना है, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने का है और प्राइवेटाइजेशन को निकालना है, हमारा डिमांड है। The government is till now not at all responded to the High Court orders, and we, the JSC leaders, are eagerly waiting for the tax, but there is no progress from the government. And today, both of the entire unions and public organizations, political parties, and entire NGOs and non-NGOs are come to the support of RTC strike. तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन की सितंबर की तनख्वाहें पीर तक अदा कर दें। तेलंगाना आरटीसी वर्कर्स 12 दिनों से हड़ताल पर हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में कहा था कि हड़ताली मुलाजमीन ने मुलाजिमत से रुजू न होते हुए खुद को बरतरफ कर लिया है, इसीलिए मुलाजिमत से रुजू होने वाले सिर्फ 1200 मुलाजमीन को ही तनख्वाहें दी जाएंगी। हड़ताली मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदायगी के लिए हुकूमत को हिदायत देने की ख्वाहिश करते हुए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर समाअत करते हुए हाई कोर्ट ने 49,190 वर्कर्स को तनख्वाहें देने का हुक्म दिया। కొనసాగుతున్న వారికి ప్రభుత్వం ఇంతవరకు జీతాలు ఇవ్వలేదు. జీతాలు ఇవ్వకపోవడం అనేది కార్మికుల యొక్క ప్రాథమిక హక్కును హరించి వేయడమని తెలంగాణ మజ్దూర్ యూనియన్, తెలంగాణ జాతీయ మజ్దూర్ యూనియన్, అదేవిధంగా ఆర్టీసీ జేఏసీ 1 మొన్న ఒక పిటిషన్ వేసింది. రాజ్యాంగంలోని ప్రాథమిక హక్కులను కాలరాస్తూ సెప్టెంబర్ నెలలో మేము చేసిన పనికి మీరు జీతం ఇవ్వకపోవడం అనేది చట్ట వ్యతిరేకము అని చెప్పేసి పిటిషన్ వేసింది. సోమవారం రోజు మళ్ళీ గౌరవ న్యాయమూర్తి గారు ఖచ్చితంగా ఆ జీతాలకు సంబంధించిన విషయం నేను డైరెక్షన్ ఇస్తానని కూడా చెప్పిండ్రు. तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर के फार्म हाउस के सामने हेड कांस्टेबल ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जिला सिद्दीपेट के गजवेल में हेड कांस्टेबल वेंकटेश्वरलू ने खुद को गोली मार ली। कांस्टेबल का ताल्लुक जिला यादाद्री से है। इस मामले में सिद्दीपेट एसपी ने बताया कि कांस्टेबल की मौत निजी मसाइल से हुई और वो शराबनोशी का आदी था। कुछ दिन पहले ही इलाज के लिए वो रुखसत पर था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सरकारी रिहाइशगाह पर आज ड्रामाई मनाजिर देखे गए। टीआरटी उम्मीदवारों ने प्रगति भवन का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया। एहतजाजी हुकूमत से टीआरटी इम्तिहानों के नतायज जारी करने की मांग कर रहे थे। इस एहतजाज में उम्मीदवारों के अफराद ख़ानदान भी शरीक रहे। एहतजाजियों को सीएम कैंप ऑफिस से हटाते वक्त कुछ देर के लिए हालात कशीदा रहे।
पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया। टीआरटी उम्मीदवारों ने बताया कि 2017 के नतायज को अभी तक जारी नहीं किया गया है। रियासती वजीर पंचायती राज ई दयाकर राव ने दावा किया है कि हुजूर नगर ज़िमनी चुनाव में टीआरएस उम्मीदवार की जीत यकीनी है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में किसी भी किस्म की चुनौती कबूल करने के लिए तैयार हैं। दयाकर राव के मुताबिक टीआरएस उम्मीदवार 20,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से जीतेगा। इसी दौरान ई दयाकर राव ने मजीद कहा कि तमाम आरटीसी मुलाजमीन उनके साथ ही हैं और इस मामले में किसी को भी किसी किस्म का शुबा नहीं होना चाहिए। दयाकर राव ने कहा कि कुछ सियासी लीडर आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के सहारे अपने करियर को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज सुबह सवेरे एक मामर शख्स को खंजीरों ने नोच डाला। ये वाकया जिला नागर कर्नूल बेजे नापल्ली मंडल के नंदीवड्डे मान गांव में रूनुमा हुआ है। इतलात के मुताबिक चलने फिरने से कासिर मामर शख्स अकेले एक मकान में रहता था। गांव वाले उसे खाने पीने के लिए ग़िज़ा मुहैया करा रहे थे। खंजीरों ने हमला करके कुंडिया का हाथ और सर खा लिया है। इस वाक़े के बाद गांव के मकीनों में दहशत पाई जा रही है। ग्राम पंचायत ने हालिया अरसे से खंजीरों को पालने वाले लोगों को नोटिसें दी थी। लोगों ने खंजीरों के सबब मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होने की भी शिकायत की है और खंजीरों को आबादियों से दूर करने की मांग की है। उधर खंजीरों की अफजाइश करने वालों ने फीकस 1 एकड़ ज़मीन देने की मांग की। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में एपी काबीना का इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में बुनकरों को माली मदद के लिए वाईएसआर चेतना हस्तम स्कीम को हरी झंडी दिखाई गई। इस स्कीम के तहत हुकूमत की जानिब से बुनकरों को 24,000 रुपये इमदाद मिलेगी। इस स्कीम पर अमलावरी से रियासती खजाने पर 216 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इस स्कीम का नफाज 21 दिसंबर से होगा। दस्तकारों के बैंक खातों में 24,000 रुपये मुंतकिल कर दिए जाएंगे। रियासत के तकरीबन 90,000 दस्तकार खानदानों को स्कीम से फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। सदर तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। नायडू ने कहा कि वज़ीर आला ने एपी को जनूबी हिंद का बिहार बना दिया है। उन्होंने तेलुगु रोजनामे से वाबस्ता सहाफ़ी के कत्ल की मजम्मत की। आंध्र प्रदेश की वज़ीर दाखिला एम सुचित्रा ने गुंटूर में डीएसपीज़ की पासिंग आउट परेड में शिरकत की। इस प्रोग्राम में एपी के पुलिस सरबराह गौतम स्वांग भी मौजूद रहे। वज़ीर दाखिला ने पुलिस एहलकारों की सलामी ली और ट्रेनिंग के दौरान बेहतर मुजाहरा करने वाले अफसरों को अवार्ड से नवाजा गया। कहाँ है नजीब? 3 सालों से ये सवाल मुल्क भर में गश्त कर रहा है। जेएनयू के लापता स्कॉलर नजीब के हक में आंध्र प्रदेश में भी मुजाहरे मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं। विजयवाड़ा में तलबा तंजीम एसआईओ की जानिब से किए गए एहतजाज में कई तलबा ने शिरकत की। एहतजाज करते हुए नजीब का पता लगाने की हुकूमत से अपील की गई। काम किया है, जो बंदों ने नजीब को सताने का काम किया है, इस्लामिक फोबिया फैलाने का काम किया है, उनको आज तक उनसे सीबीआई ना क्राइम ब्रांच ना एसआईटी ने कोई पूछताछ की है। इस पूरी मुहिम के अंदर हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने भी बहुत सख्त से ये आवाज़ उठाई है कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर कई लूप होल्स है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर कई खामियां हैं जिसे पूरा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एसआईओ ये डिमांड करता है, पहला डिमांड ये करता है कि नजीब कहाँ है, नजीब को फिर वापस यूनिवर्सिटी के अंदर लाए, नजीब को फिर वापस यानी सोसाइटी के अंदर लाए। दूसरा एक अहम डिमांड एसआईओ ये करता है कि जितने भी तलबा कैंपसेस में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उनकी हिफाजत मरकज़ ले, उनकी हिफाजत हुकूमत ले, और ये हुकूमत है ना इसके लिए ऐसी सख्त कानून बनाए कि तलबा को कोई नुकसान ना पहुँचे। तीसरी ये चीज़ हम ये चाहते हैं कि जितने भी नौजवान पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, कैंपसेस में पढ़ते हैं, उनकी तालीम के लिए ऐसे अच्छी से अच्छी पॉलिसी लाए, फीसेस के अंदर कम।
करनूल जिला पुलिस दफ्तर में हफ्ते शहीदा पुलिस के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रायलसीमा रेंज डीआईजी ने शिरकत की। इस मौके पर कई अफराद ने खून का अतिया दिया। डीआईजी ने खून का अतिया करने वालों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि खून का अतिया देने से इंसान तंदुरुस्त रहता है और दूसरों की जान बचाई जा सकती है। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से YSR कंटिवेलगो स्कीम के तहत करनूल के मोतिया उर्दू हाई स्कूल में तलबा की आंखों की तशखीस की गई। डॉक्टर सैयद आसिफ कादरी ने हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए प्रोग्राम की सताइश की। उन्होंने बताया कि अगर किसी भी तालिब इल्म की आंखों की रोशनी कम हो तो हुकूमत की जानिब से मुफ्त ऐनक भी दी जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर ऑपरेशन भी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश SSA के ज़ेर-ए-एहतमाम अमरावती में 5 रोज़ा वर्कशॉप बराए टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इफ्तिताह प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफिस में हुआ। इस प्रोग्राम में अव्वल ता 5वीं जमात के मॉडल असातिज़ा के लिए तर्जुमे की तरबियत दी जा रही है। इस वर्कशॉप में अनंतपुर, कड़पा, चित्तूर, कृष्णा, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी और गुंटूर अजला के माहिरीन असातिज़ा और मुतरज्जिम शरीक हैं। इस वर्कशॉप का मकसद असातिज़ा के लिए जदीद तदरीसी तरीक़ों और तालीमी मयारात पर मबनी किताबचे को तैयार करते हुए तदरीसी फ़न को अहम आहंग करना है। रुकन कानून साज काउंसिल शेख मोहम्मद इकबाल ने करनूल का दौरा किया। उन्होंने करनूल में स्वच्छ भारत अभियान प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने कैंप स्कूल के मैदान में सफाई की और आवाम से अपने अतराफ व कनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखने की अपील की। तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच सरहद समझी जाती है। नदी पर ज़ेर तामीर एक पुल अरसे से इलाके के लोगों के लिए खतरनाक मुसीबत बना हुआ है। फौरी पुल तामीर करते हुए उन्हें राहत देने की इलाके के लोगों ने हुकूमत से मांग की है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। गाड़ियों, ट्रेनों और जहाज़ों के इस दौर में भी ये लोग पैदल सफ़र करने पर मजबूर हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या ख़वातीन, यहाँ तक कि जवान मरीज सभी को अपने गांव पहुँचने के लिए ये पुल पार करना ही पड़ता है। यहाँ तक कि लोग अपने मवेशी भी इस पुल के जरिए ले जाते हैं। हालांकि एक दौर में यहाँ अच्छा खासा ब्रिज हुआ करता था जो कि पानी के तेज बहाव की नजर हो गया और उसकी बाक़ियात नदी के बहते पानी में देखे जा सकते हैं। तब से लेकर अब तक इस पुल के दोनों जानिब की आबादियों के मकीन इसी तरह मुश्किल झेलते आ रही हैं। दरअसल ये पुल तेलंगाना और रायलसीमा की सरहद पर वाक़ है। जिला करनूल नंदावरम मंडल के नागलादिन्ने गांव से तुंगभद्रा गुजरती है। बरसों से लोग इस नदी के रास्ते एक दूसरे के गांव आते जाते रहे हैं। 18 नवंबर 1992 को उस वक्त के वज़ीर आला कोटला विजय भास्कर रेड्डी ने इस नदी पर एक पुल का संग बुनियाद रखा। उस वक्त पुल बनाने के लिए 6 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। ताहम पुल की तामीर के काम को नजरअंदाज ही किया जाता रहा। साल 2003 में पुल बनाने का काम शुरू किया गया, लेकिन साल 2009 में पुल नदी के तेज बहाव की जद में आकर गिर पड़ा और तब से यहाँ लोगों की मुश्किलों का सिलसिला शुरू हो गया। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में आखिरी कांग्रेस दौरे इक़्तिदार ने साल 2011 में दोबारा पुल बनाने के कामों का आगाज किया। साल 2013 में टेंडर तलब किए गए और हैदराबाद की एक कंपनी ने 2014 मार्च में तामीराती कामों का आगाज कर दिया, लेकिन आज तक ये काम मुकम्मल नहीं हो पाए हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स की लापरवाही, मुताल्लिका हुक्काम और सियासी लीडरों का दबाव न होने की वजह से ऐसी सूरत हाल देखी जा रही है। इस पुल के काम को साल 2016 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने तामीरी कामों की तकमील के लिए मियाद में पहले 1 साल फिर मजीद 1 साल की तौसी की। हुकूमत की तरफ से दिए गए अल्टीमेटम के मुताबिक तामीरी काम जारिया साल अगस्त में पूरा हो जाना था, लेकिन यहाँ अब तक बड़े बड़े काम भी पूरे नहीं हो पाए हैं। तयशुदा डेडलाइन के मुताबिक अब ये तमाम तामीरी काम आइंदा साल मार्च तक
पूरे हो जाने हैं। पुल बन जाने के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के देही इलाकों के लिए एक बड़ा राब्ता पैदा हो जाएगा। इलाके के लोगों को फिलहाल लंबा सफर करना पड़ रहा है। जिला महबूब नगर के आयजा को जाने के लिए कर्नूल के लोग बराहे मंत्रालय, रायचूरू और एरिगिरी से 70 किलोमीटर का सफर करने पर मजबूर रहते हैं। लेकिन अगर ये पुल बन गया तो सिर्फ 10 किलोमीटर सफर करके लोग अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लोगों का वक्त, पैसा और दूसरे वसाइल बच सकते हैं। ब्रिज न होने से लोगों को मंत्रालय से होते हुए एरिगिरी से आयजा को जाना पड़ता है। दरअसल नदी में पानी के तेज बहाव को देखते हुए कश्तियों से नदी पार करने पर इंतजामिया ने पाबंदी आयद कर रखी है। मौसम गर्मा में पैदल चलकर ही लोग नदी पार कर लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा है। इसीलिए इस नामुनासिब सीढ़ी का इंतजाम करके नदी पार करने की आर्जी सहूलत मुहैया की गई है। पुल के लिए रायलसीमा में अरसा पहले ही जमीन हासिल कर ली गई है। दूसरी जानिब तेलंगाना के जिला गढ़वाल में इस पुल के लिए 2 एकड़ जमीन हासिल की गई, लेकिन कुछ तकनीकी मसाइल आड़े आ रहे हैं। दरअसल सरकारी फीताशाही इस पुल की तामीर में ताखीर की बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक